Welcome student in second session from your textbook chapter number 5 coal and petroleum. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the natural resources. There is a two kind of natural resources, inexhaustible and exhaustible. Okay, and that about the fossil fuels. So in that fossil fuel we study coal, and there is different types of coal, derivative product of coal, that coke, coal tar and coal gas, okay, and petroleum product. So now we are going to discuss today that refining of petroleum by fractional distillation. Okay, so in that last session we studied about the petroleum. Now we study about the refining of petroleum by fractional distillation process. So it is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. So these are the constituent of the petroleum. Okay, so it can be separated by the fractional distillation process. Means in simple we can call that refining. Okay, so fractional of that petroleum is known as refining, and it is carried out in a petroleum refinery. So the process of separating the various constituent factor petroleum is known as and refining. It is carried out in a refining that petroleum refinery components obtained are. तो जब आप इसको रिफाइन करते हो तो कौन कौन से दैट कंपोनेंट मीन्स ऑब्टेंड होते हैं. देखो इस टाइप से लुब्रिकेटिंग, जैसे ये सभी फर्स्ट ईयर लुब्रिकेटिंग ऑयल लाइक दैट. तो ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इट इज़ अ वन काइंड ऑफ दैट फर्नेंस. इस टाइप का फर्नेंस होता है. तो इसमें सभी मीन्स क्या रहते हैं, जिस बॉइलिंग पॉइंट, सभी के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं. तो बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट, सो इट कैन बी सेपरेट आउट बाय दिस पाइप. ओके, आउटलेट पाइप इज देयर. सो वी विल स्टडी फर्स्ट दैट कंपोनेंट ऑफ ऑप्टेंट्स आर. सो कंपोनेंट ऑप्टेंट कौन कौन से ऑप्टेंट होंगे. फर्स्ट पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, फ्यूल फॉर होम इंडस्ट्रीज. ओके, इसका यूज़ क्या होता है पेट्रोलियम एलपीजी का, fuel for home and industries. Okay, so this is used as a the domestic purpose we can use petroleum gas. Second, petrol. So petrol का use क्या है, motor fuel, aviation fuel, solvent for dry cleaning. So these are also obtained from that petroleum product. Kerosene, fuel for stove, lamps and for jet craft. Okay, diesel, fuel for heavy motor vehicle, electric generator. So diesel are used. Diesel is also the derivative product of that petroleum. Lubricating oil, for that lubrication. Okay, lubrication means that for slipness, मीन्स स्मूथ बनाने के लिए उसे यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीस ये बोल सकते हो. ठीक है. नाउ पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलिन, ये सब चीज़ें बनाई जाती है. एंड बिटमन, देयर इज़ ए पेंट्स, रोड सरफेसिंग, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है. ओके, सो हियर इज़ दैट दैट डिस्टिलेशन. ओके, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो जैसे ही मीन्स जैसे यहाँ पे दिया है, देखो ये क्रूड ऑयल, दिस इज ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस. ये क्रूड ऑयल हीटेड किया जा रहा है. तो जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे 370 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे कम पे क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस से ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये मीन्स रिलीज़ होंगे. उसके बाद में 200 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल, 300 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन. ओके, 370 डिग्री सेल्सियस पे डीजल एंड 400 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल ऑयल. ये सब क्या होगा, रिलीज. एंड दैट हियर इज़ ये रिलीज़ होके कहाँ आते हैं, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, यहाँ से भी रिलीज होते हैं. क्लियर दिस वन. सो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द नेचुरल गैस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप. मीन्स ये इसेंशियल फ्यूल है और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है. इट इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज CNG, means compressed natural gas. Okay, compressed natural gas is used for the power generation
इट इज़ लेस पोल्यूटिंग मीन्स इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है. इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, दैट्स वाई यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल. So means nowadays CNG gas is more using to that clean the environment because it is what clean fuel, cleaner the fuel means ये कैसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है एंड लेस पोल्यूटिंग है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. नाउ फॉसिल फ्यूल्स एंड दैट environment. Okay, fossil fuel energy and that environment. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. मीन्स जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते तो वो सारी हार्मफुल गैसेस सिक्रीट होती है, ओके, जनरेट होती है, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है. दैट्स वाई यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसलिए जब भी ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. तो रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जब आप इसका यूज़ कम करते हो, रिड्यूस कर देते हो, तो आप किससे बच सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी. सो एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये ज़्यादा समय तक आपको फॉर फ्यूचर जनरेशन भी ये फॉसिल फ्यूल यूज़ कर सकते हो. इन इंडिया PCRA that advise people how to save that petrol diesel while driving. PCRA means what? There is a Petroleum Conservation Research Association. Okay, in India, Petroleum Conservation Research Association advise people how to save petrol diesel while driving. So some points are there. So what are the tips for that? ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल. मीन्स आपको एक जैसी स्पीड से ही ड्राइव करना चाहिए. ऐसा नहीं पहले ज़्यादा स्पीड किया फिर कम किया, तो इससे मीन्स फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है. सेकेंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. और जहाँ पे वेट करने के लिए या फिर सिग्नल मीन्स ट्रैफिक सिग्नल भी स्टॉप का आता है, तो वहाँ पे भी इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. थर्ड, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और ऐसे टायर मीन्स यूज़ करने चाहिए जिससे करेक्ट प्रेशर भी हो और उससे इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड नहीं हो. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और मेंटेनेंस भी कंप्लीटली चेकिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम रेगुलर. सो उससे भी आप मीन्स ये जब फॉसिल फ्यूल जब ये बर्न होते हैं तो उसके जो इफेक्ट है तो उससे आप बच सकते हो. क्लियर दिस वन? थैंक यू.